हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आपका मूड ख़राब है तो अच्छा होने वाला है, और उसकी रीज़न है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। ये जगह ही ऐसी है कि इसको देखते ही, यहाँ पर आते ही आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये है DHA बहावलपुर का एक पार्क जिसका नाम है DHA ग्लो पार्क। और ग्लो पार्क इसका नाम मेरे ख्याल से बिल्कुल सही रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर इतनी रोशनी है कि आप यहाँ आकर खो भी सकते हैं रोशनियों की चमक में। तो कोशिश कीजिएगा अपने साथ किसी ना किसी को लाएं, चाहे वो आपका घर वाला हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई हम सफ़र हो, क्योंकि यहाँ आकर आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये पार्क, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और ऐसी जगह पाकिस्तान में और स्पेशली साउथ पंजाब में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं और अपनी शाम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ज़रूर, क्योंकि इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको इस पार्क का भी विज़िट करवाऊंगी। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हम करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और पार्क के अंदर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं और पीछे म्यूज़िक भी चल रहा है और बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। और पीछे जो आप वाटर फ्लो देख रहे हैं, जिसको डांसिंग वाटर भी कहा जाता है, वो भी यहाँ पर है और बहुत ही खूबसूरत वाइब है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लोग हैं, कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो US से आए हैं और स्पेशली यहाँ आकर उनको कैसा लगा है, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। हेलो व्हाट्स योर नेम? My name is Rebecca. Rebecca. Yes. Can you tell what's the meaning of Rebecca? The meaning is bound in Hebrew. Okay, you have very beautiful eyes. Thank you. Is it from your genes? Yes. Nice. How is your visit about Pakistan and how is life going? Life is going great. This is my second time visiting Pakistan. I came here last year and I fell in love with Pakistan as soon as I came. Do you know the name of this place? Yes, it's Bawalpur DHA. And how is the environment and vibe you find here? Honestly, the Glow Park, I visited the DHA last year and I think the Glow Park is an amazing addition to DHA. It's bright, colorful, fun, it's welcoming, it's just a great place to run, you know, that's what we were doing here. And have you tried Pakistani food? Love Pakistani food. Which food item? My favorite street snack so far is Golgappe. Golgappe, and I think Golgappa is very spicy especially for foreigners. A little bit. Do you like spices? I love spices. And who is with you? This is my friend, Fizra. Okay, so अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पाकिस्तान से हैं या आप? जी मैं यहीं से हूँ, भावलपुर रेजिडेंट। तो ये इतनी खूबसूरत और प्यारी सी दोस्त आपको कैसे मिली, कहाँ से? How your friendship started with her? We met on Facebook actually. Yeah. Really? Yes. Travel all from US to Pakistan just to visit her, just to meet her? Yes, we met on an online book club and she started telling me about the mountains and Baltistan region and I fell in love and I just wanted to come see it. How much areas or cities or places in Pakistan you have explored till now? I've explored a lot. I've been to Lahore, Islamabad, Karachi. I've been to Gilgit. I've been to Astor, Hunza. Which is the most beautiful place in Pakistan? Most beautiful place, probably Hunza, but my favorite place to be is Bawalpur. Bahawalpur, nice. So why Bahawalpur is on top of the list? It's not like Lahore or Karachi where it's so busy and crowded. So crowd. Yes, it's welcoming. The people are so kind and warm, and the food is amazing. Nice. I think you are very much impressed by the food, and I think the taste of Asian cuisines, it's unmatchable. It is indeed. How's life in US and what do you do for a living? I'm a student right now and I take care of my nana, so I'm not working at the moment, but life is going wonderful. आप थोड़ा सा बताएंगी कि बहुत ही खूबसूरत पार्क है और जैसे ये तो टोटली इम्प्रेस हो गई हैं यहाँ आकर और कह रही हैं कि बहावलपुर ही सबसे बेस्ट है, तो कौन कौन सी जगह दिखा चुकी हैं?
Actually, specifically in Bahawalpur, we visited the palaces, Noor Mahal Palace and Dera Nawab, Sadigarh Palace, Derawar Fort, basically everything. Most of our focus here in Bahawalpur is for me to try the specific foods, especially desi food, barbecue items and all that. Rebecca, do you feel Pakistan safe for women, especially who traveled all along from US, from England, from different countries? How is your experience? I've felt perfectly safe traveling here. I've never felt threatened. It's mostly because I've had such a wonderful friend, with me, but also the people are kind and Will you recommend Pakistan to visit in your circle, especially in US and in other countries, in your friend circle? yes, absolutely. You can't miss it, honestly. Any message for Pakistani people? Thank you. Thank you for welcoming me here and showing me your beautiful country. Thank you so much. It was nice meeting you and you can enjoy your time here. जी नाजरीन, तो अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्तवर अहमद। मुस्तवर अहमद। मुसव्विर अहमद, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये बताएं क्या करते हैं आप? आई एम डूइंग माई ओ लेवल्स फ्रॉम एसपीएस। ओ लेवल्स कहाँ से कर रहे हैं आप? सादे पब्लिक स्कूल से। सादिक पब्लिक स्कूल से। और ये बहावलपुर का एक बहुत ही नामी ग्रामी स्कूल है, ऐसे ही है? जी, नवाब सादिक ने खुद बनाया था इसको। ठीक है। तो यहाँ पढ़ने वाले कहीं नवाब तो नहीं बन जाते? होपफुली नॉट, वो देखें। तो आप बहावलपुर से हैं? जी। तो आज DHA बहावलपुर में आप आए हुए हैं और इस पार्क में आए हुए हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब, यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या हैं, एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, फ़न के लिए क्या है, सब बताएं। ये पार्क बहुत अच्छा है, मुझे लाहौर के रिमाइंड कराता है। वहाँ पे कार्निवल था, वहाँ पे ऐसा बहुत सिमिलर है उससे। और मेरी बहन भी आई थी, वो UK से है, उसको बहुत अच्छा लगा था क्योंकि उसको यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वैसे बताइए, ये ऐसी जगह है जो मुझे नहीं लगा कि मैं बहावलपुर में आई हूँ। दैट्स हाउ इट इज़। UK से आने वालों को भी ये जगह अट्रैक्ट करती है बहुत। तो आप मुझे ये बताएं कि आज बहन की वजह से आए या खुद भी दिल कर रहा था कहीं घूम फिर के आऊँ? हमारा बहुत अरसे से प्लान था कि यहाँ पर आने, और मेरा कल पेपर है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, तो देख लें कितना अच्छा है। चलें कोई बात नहीं, जब आपका माइंड इतना फ्रेश होगा और मूड इतना अच्छा होगा तो आप रिवीजन नहीं भी करेंगे तो शायद पेपर अच्छा होगा। मैथ्स है, देखिए मैथ्स में क्या रिवीजन करनी। मैथ्स अच्छी है आप? जी, मैथ्स इस पार्ट में आप, मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है और अभी तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया ठीक से। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट करता है यहाँ पे? वो वाले फाउंटेन्स बहुत प्यारे हैं वो। और फाउंटेन्स में क्या खास है? फाउंटेन्स वो म्यूज़िक से बहुत सारे कोरिलेट कर रहे हैं, और म्यूज़िक से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा आ रहा है इससे। म्यूज़िक और फाउंटेन का जो रिदम है वो आपस में मैच। जी, बहुत ज़्यादा। डांसिंग फाउंटेन टाइप है? हाँ, कुछ ऐसे ही। आपको म्यूज़िक का शौक है? जी। गाने का है? सुनने का? गाने का नहीं? नहीं, थोड़ा सा भी नहीं? मतलब थोड़ा सा है, बट थोड़ा सा गा सकते हैं तो माहौल भी। माहौल बना हुआ है। ऐसे वोकल ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो दैट्स व्हाई। नहीं, ये आपको जिसने भी कहा है ना, तो वो आप उसकी बात ना माने, आप अपने अंदर की आवाज़ सुने, क्योंकि हर इंसान को अपना आप अच्छा लगना चाहिए। तो शेर नहीं आते, लाइक गाने सुनो। गाने का थोड़ा सा कौन सा वाला? जो आपको इजीली आता हो। तो ना सोचना पड़ रहा है, तो पेपर में क्या करोगे? गाना सबसे इजी। दिमाग भी वहीं पे चल रहा है ना, तो इसलिए अभी नहीं कुछ हो रहा। कौन सा वाला? तब तक आपसे ना क्वेश्चन करती हूँ, आप गाना याद कर लें, ठीक है? तब तक एक सवाल है आपसे, बहुत इजी सा है, पहेली है कि बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें सुइयाँ तो होती हैं पर वो सिलाई नहीं करती? सुइयाँ होती है लेकिन सिलाई नहीं करती। घड़ी। यार क्या बात है, मतलब कैसे पहुंच गए फौरन? बस हाथ में पहनी हुई है, तो भी पहनी हुई है। वो देख कर याद आ गया था। गाना सुना दें। तो चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगे बहावलपुर के बाहर से जो लोग आ रहे हैं, क्या उनको यहाँ आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके लिए अच्छा टाइम पास होगा? आए ज़रूर है, बहुत अच्छा है बहावलपुर, बहुत अंडररेटेड शहर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा शहर है, आना चाहिए लोगों को यहाँ पे। लाहौर की जगह यहाँ पे आना चाहिए। व्यूअर्स, ये जगह तो ऐसी नहीं है कि यहाँ से ब्रेक पे जाया जाए, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे।
जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनको आप अक्सर अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं और इनके अल्फाज और इनकी जो सहाफ़त है उससे फ़ायदा भी उठाते रहते होंगे, क्योंकि जितनी मालूमात इनके पास होती हैं मेरा नहीं ख्याल किसी और के पास होती होंगी। हमारे बहावलपुर के ब्यूरो चीफ़ और मेरे जो हैं मोहतरम उस्ताद रज़ा मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ बातें इनसे करते हैं, क्योंकि ये भी इस पार्क में घूमने के लिए आए हुए थे, शाम में कुछ वक्त अपने साथ गुजारने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सईदा? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और देखो, ये तो ऐसी एक ना दिल नशीन और वो फ़ज़ा जगह है ना कि अक्टूबर है, मौसम तब्दीली ले रहा है और यहाँ बहावलपुर की जो शाम है ना, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में शायद इससे खूबसूरत शाम जो है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। और DHA में जो है ना, उसकी शाम की ख़ास बात ये है कि यहाँ आपको ना जब सनसेट हो रहा होता है तो आपको एक इतनी वुसअत मिलती है ना, इतनी आपकी नज़र ना, आपको आसमान और ज़मीन मिलते हुए जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। और क्या बात कर दी, आसमान और ज़मीन मिलते हुए नज़र, तो जो सनसेट है वो बहुत खूबसूरत होता है। और यहाँ शाम को तो मैं अक्सर बहावलपुर हूँ, तो मैं अक्सर शाम को जो है ना वो यहाँ की कुशादगी और खूबसूरती और जो है एक बेहतरीन फ़िज़ा को एंजॉय करने के लिए ना यहाँ वॉक करने के लिए जो है वो आता रहता है। लगता है कि माशाल्लाह अल्लाह ताला आपका सुकून इसी तरह से बरकरार रखे, जो आपकी मुस्कुराहट और आपका सुकून, क्योंकि किसी ज़माने में आपको गुस्सा भी बड़ा आता था और आपका BP भी हाई रहता था, लेकिन मुझे लग रहा है अब नहीं होता वो। उसकी यही वजह है DHA बहावलपुर की पुरसकून फ़िज़ा। हाँ बिल्कुल, यकीनी तौर पे जो है देखो, वो जो एक उस वक्त स्ट्रेस वाली ज़िंदगी थी, भाग दौड़ थी, यहाँ जो है एक बेहतरीन वैसे वो कहते हैं कि बहावलपुर को ना बागात का शहर कहा जाता है, लेकिन इनफैक्ट DHA जो है अब वो नया बहावलपुर है। हर वो चीज़ यहाँ की कुशादगी, सड़कें सरसब्ज़ हैं, फ़िज़ा बहुत अच्छी है और यहाँ जो आपको एक सुकून मिलता है ना, सिक्योरिटी बहुत शानदार है। आप कहीं भी गाड़ी छोड़ें और वॉक करने के लिए निकल जाएं, आप वॉक करें, इर्द गिर्द का माहौल और उस कदर वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा रशी एरियाज़ नहीं है, आपको और भी बहुत अच्छे लोग वॉक करते हुए यहाँ नज़र आते हैं। फिर यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आप आर्चर्ड इनक्लेव में चले जाएँ तो बड़ा सिंथेटिक ट्रैक बना हुआ है वहाँ पे वॉक का, तो वहाँ पे वॉक करने का बिल्कुल मज़ा आता है। सेंट्रल पार्क चले जाएँ तो वहाँ वॉक कर लें। तो मुझे वैसे पर्सनली जो है ना वो ये ग्लो पार्क जो है ना वो बिल्कुल जो पीछे नज़र आ रहा है ना, ग्लो है यहाँ, ग्लो है। हाँ बिल्कुल, आपको ना जो एक रोशनी है ना और जो रंग है वो मेरा ख्याल आपको एक आस उम्मीद देते हैं। और एक ना जब आप यहाँ DHA बहावलपुर पहुँचते हैं ना तो ये आपको और भी ज़्यादा एंजॉय करने का ना एक मौका मिलता है। अच्छा, मैं जिस तरफ देख रही हूँ, जिस कोने में देख रही हूँ, कुछ नया नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एक भी हिस्सा इसका हम कहें ना कि वो बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। नहीं बिल्कुल ऐसा है, देखें यहाँ बड़ी तरतीब के साथ ना जो पार्क्स हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ और जिसे कहते हैं ना कि अगर आप कोई अपना ख्वाबों का घर देखते हैं ना तो मुझे लगता है कि DHA बहावलपुर इज़ द परफेक्ट प्लेस टू हैव अ ड्रीम हाउस है ना। तो आपको कुशादगी मिलती है, मैं बता रहा हूँ आपको हर तरह का एक आप कहते हैं ना कि ओके भाई आपको जो एक शोर शराबा और एक जो हसल बसल लाइफ है ना, हाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटी भी हैं, सबसे बढ़ के सिम्स जो है वो यहाँ मेडिकल कॉलेज की तालीम यहाँ पर है और पार्क्स बने हुए हैं। सबसे बड़ी जो मज़ेदार बात ये है कि जो एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ है ना यहाँ, अब यहाँ देखें आपको कोई भी एक फालतू चीज़ जो है ना आपको नज़र नहीं आ रही होगी, कंफर्टेबल है। हाँ ये बिल्कुल ये एक कोजी एटमॉस्फेयर है ना, एक कंफर्टेबल माहौल है, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको सुकून का देता है और आपको एक ऐसी दिल करता है कि आप यहाँ रोज़ आएँ और रोज़ यहाँ वॉक करें और फिर जब वसाइल इजाज़त दें तो मुझे ज़रूर बनाए। मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा है यहाँ आकर। तो आप शाम में अक्सर इसी तरह से निकलते हैं, तफरीह वैसे ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी होती है। नहीं अदर दिन तफरी में बताना कि थोड़ा सा एक दिल करता है कि शाम को बंदा वॉक करे, को थोड़ा सा जो है वो घूमते फिरते नज़र आए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखे। और फिर बताना कि जो DHA बहावलपुर का सनसेट है ना वो क्वाइट अमेजिंग है और फिर जो डांसिंग फाउंटेन्स है ना वो फैसिनेट कर देते हैं। और फिर जब मैं रंगो नूर को देखना चाहता हूँ ना, तो जब आपको देखें कौन सा रंग है जो यहाँ मौजूद नहीं है और ये फाउंटेन्स चल रही हैं और पीछे पूरा बुके बना हुआ है। मुझे ये वाला बुके जो है ना ये बहुत फैसिनेट करता है और मैं इसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़ा एंजॉय। कोई लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे आप लोगों को, देखने वालों को? देखिए पैगाम जो है ना, बस आपने सिर्फ एक काम करना है,
आपने ना सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आप अपना ख्याल रखें। बस अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को पहली तरजीह पे रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया सर आपके साथ, और आपकी जो बातें हैं, ख़ास तौर पे आपने कहा कि ये पार्क, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ जैसे वाटर है, फूल हैं, दरख्त हैं, ये आपको उम्मीद देते हैं। अगर आप उदास हैं, किसी चीज़ से थके हुए हैं, तो यहाँ आएँ रिलैक्स हो जाते और हैं। रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से रज़ा साहब ने बताया कि इस पार्क में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक होप है, उम्मीद है कि अगर आप बोर हो रहे हैं, उदास हैं, किसी वजह से गमगीन हैं या ज़िंदगी की उलझनों में उलझ कर रह गए हैं, तो आप यहाँ आएँ या किसी भी पार्क में चले जाएँ जो आपके करीब है, तो आपको जो नेचर है, जो पानी है, दरख्त, पौधे, फूल, खूबसूरती, वो आपको उम्मीद देती है। इसी के साथ चलेंगे मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करेंगे बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, और स्पेशली इस पार्क में मैं देख रही हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से बल्कि आउट ऑफ द कंट्री यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं जो अपनों के साथ वक्त गुजारने के लिए आते हैं, और वो फिर उनको होता है कि कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिले जहाँ जाकर कुछ सुकून मिले। तो DHA भावलपुर के इस पार्क में बहुत से फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो यहाँ से, पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में गए लेकिन फिर अपनी जगह पर वापस भी आते हैं अपनों से मिलने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम सलमान मुस्तफ़ा नाम है। सलमान साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइफ कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं और आज यहाँ कैसे? मैं बेसिकली भावलपुर से ही हूँ और मैं पिछले फ्यू इयर्स मैं UK में होता हूँ, बर्मिंघम में। तो आज सडनली हम इधर गुजर रहे थे तो हमने DHA का इंतखाब किया कि विज़िट किया जाए जी। तो सडनली हम यहाँ पे आए तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय। आपका होम टाउन जो है वो भावलपुर है? जी मेरा होम टाउन भावलपुर है। जब यहाँ से गए थे तो क्या ये चीज़ें तब थी या बाकी आप थोड़ा सा हैरान हुए हैं कि इतना डेवलपमेंट? I think after 4 or 5 years there is lot of changing here, yeah, in Bahawalpur, yes. How's life in UK? I think it's very busy and very hectic, or opposite? His life is busy in a circle. You have to be punctual in your life, like everything in a circle, or yeah. Okay, when you live in UK and I think you have to make your own food sometimes when family members are also busy there. So which food item you miss the most about Pakistan? Paratha and chai, karak chai. Which paratha? There are so many kinds of paratha. Yeah. Simple Any paratha, because no one's make the paratha that like same in Pakistan or. So when you, which month you came here? I just came last week. Yeah, so I'm going next week back to my home. Okay, so which is the first food item you tried here when you landed? I think I just tried some fries and like pizza. So the Nawabi pizza is delicious and I like it. And the kids also like it because it's not spicy. तो आप वैसे हैं बहावलपुर नवाबों के शहर से, लेकिन और यहाँ की लैंग्वेज जो है, स्पेशली पाकिस्तान में हम पंजाबी भी बोलते हैं, सराइकी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। वहाँ पर आप लैंग्वेज को भी मिस करते होंगे, यहाँ के पैलेसेस को भी मिस करते होंगे, यहाँ की लाइफ को भी मिस करते होंगे। तो क्या वहाँ के इन्वायरमेंट में आप रच बस गए हैं या अभी भी अपनी वो जो एक होम टाउन होता है वो याद आता है वहाँ? होम टाउन आपका होम टाउन होता है, आपका ईज प्लेस होता है, सो वो आप कभी भी नहीं भूलते। जितने मर्जी आप रच बस जाओ, वो आपको रच बसना पड़ता है, बट होम टाउन इज़ होम टाउन। सो मच, इट्स अ प्लेयर मीटिंग यू। कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शबाज खोकर। तो सर आप क्या करते हैं? मैं इधर जॉब करता हूँ GR जी, ग्लो पार्क। जी ग्लोब पार्क में DH में। कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन एक साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो 1 साल का कैसा तजर्बा रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा रहा। बहुत अच्छा VIP। मैं देख रही थी कि अभी जितने भी गेस्ट आते हैं आप उनको बड़े दिल से वेलकम करते हैं। तो ये दिल से आप हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, या काम के लिए मुस्कुराते हैं? नहीं, दिल से मुस्कुराता हूँ, खुशी से मिलती है। तो आपने ये जो स्पेशल गेटअप किया हुआ है, ये सर पे भी पहना हुआ है, इसके पीछे क्या वजह है? ये बच्चे वगैरह मतलब लाइक करें, अच्छी खुशी से मतलब बच्चे खुश होते बच्चे खुश वगैरह होते हैं, बड़े खुश हो अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलते हैं मज़ीद लोगों के पास।
वेलकम बैक व्यूअर्स। DHA ग्लो पार्क से अब हम दोबारा आ गए हैं इसके फैमिली पार्क में। और DHA भावलपुर की वाइब की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमज़ा। हमजा साहब, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। तो DHA भावलपुर और स्पेशली इस पार्क में क्या करने आए हैं? मैं शूटिंग क्लब आया हुआ था, तो वहाँ से फैमिली के साथ पार्क में आया हूँ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है, एंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बच्चे वगैरह। बहुत मतलब मैं भी यही कहूँगा सब यहाँ आएँ, अपनी लाइफ को स्पेंड करें यहाँ आकर। बहुत ही अच्छा पार्क, बहुत प्यारा व्यू है, तो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। DHA शूटिंग क्लब की बात कर रहे हैं, जी जी, वहाँ से क्या है? शूटिंग क्लब है वहाँ पर DHA में, वहीं पर ही था। वहाँ क्या होता है, मतलब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए? क्लब्स है, उसमें शूटिंग होती है, आपकी बताना कार है, जिस तरह भी बातचीत होती है वहाँ पे सब कुछ बताना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंजॉय करते हैं आके? जी जी, इसको आना चाहिए, क्या मैसेज? हाँ फैमिली को आना चाहिए। बहुत सुकून वाला जगह है, सुकून दे है, पार्क है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, आना चाहिए यहाँ पर। काफ़ी माइंड फ्रेश होता है इंसान का आने से। थैंक यू। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और करते हैं उनसे बातचीत। जैसा कि आपको मैंने इंट्रो में बताया कि हम लोग DHA बहावलपुर के सेंट्रल पार्क में आ गए हैं और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पर इस पार्क में हर तरफ ग्रीनरी, फ्लावर्स और कुछ खूबसूरत लोग, खूबसूरत फैमिलीज़ आई हुई हैं जो अपनी शाम को यादगार बनाने के लिए दिन भर की थकान के बाद जब फ्री होते हैं तो कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोग अकेले जो रहना पसंद करते हैं वो वॉक करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी हैं। एक प्यारी सी फैमिली जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनकी तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन। नौशीन, आपका पूरा नाम क्या है? नौशीन अली। नौशीन अली, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं, तो ये यानी कि आप एक फुल टाइम जॉब करती हैं? जी हाँ जी। ठीक है सर, आपका नाम? मोहम्मद अली राजपूत। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जी तो क्या आपका ताल्लुक DHA बहावलपुर से है? जी। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ जी। साथ में आपकी बेटियाँ? हाँ जी, बेटियाँ हैं मेरी दोनों। तो DHA के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अच्छा और शानदार मंसूबा है भावलपुर की आवाम के लिए, और जो सराउंडिंग में और भी इलाके लगते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है अच्छी। यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ की खूबसूरती तो है ही लाजवाब। खैर, और सुकून बहुत है यहाँ पे। तो इस चैनल के तवस्सुत से हम कहना चाहेंगे दूसरे लोगों के भी कि यहाँ पे आकर रिहाइश पजीर हों, यहाँ पे घर बनाएं और पुरसुकून ज़िंदगी हासिल करें, लुत्फ़ उठाएं ज़िंदगी का। आप लोग बड़े लकी हैं कि अपनी ही जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी है DHA, वहीं पर आपको एंटरटेनमेंट के लिए और शाम गुजारने के लिए जगह मिल गई है। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरूज फातिमा। अरूज। आपका नाम? इशाल फातिमा। विशाल। तो आप दोनों ट्विंस तो नहीं हैं? नो। कौन बड़ा है? नो। आप बड़ी हैं। आपकी क्या एज है? मेरी मम्मा को बता। आपको नहीं पता? नहीं पता। अच्छा, आप इनसे कितनी बड़ी हैं? ये पता है? 2-3 साल। 3 साल। कौन सी क्लास में? 3। और आप? 2। आप किस स्कूल में जाती हैं? न्यू इंग्लिश मॉडल स्कूल। इधर ही जाती हैं, इसी यहीं पे आप? जी। शाम का टाइम होता है और अक्सर ख़वातीन दिन भर कामकाज करने के बाद और वेट करने के बाद हस्बैंड का, तो फिर एक शाम का ही टाइम मिलता है ना ख़वातीन को, तो आप कैसे गुजारती हैं? यहाँ पे ले आते हैं बच्चों को भी। यहाँ पे बच्चे बहुत फ़न करते हैं, यहाँ के बस खेलते हैं फिर वापस घर। तो पार्क में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए? क्या एक्टिविटी? बच्चों के लिए ये जो प्ले एरिया है और ये जो झूले वगैरह हैं, तो इनमें बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप इंजॉय करती हैं बच्चों? हाँ, बच्चों को देख के ज़ाहिर बात है माँ बाप भी इंजॉय करते हैं। सिर्फ बैठ के इंजॉय करती हैं या इतना यहाँ पे मैं देख रही हूँ इतना बड़ा ट्रैक बना हुआ है, कभी वॉक वगैरह भी हाँ जी, कभी कभार वॉक भी कर लेते हैं, वैसे ज़्यादातर बच्चे ही इंजॉय करते हैं। सर से पूछते हैं, तो डेली आप लेके आते हैं फैमिली को? ये डेली की रूटीन है? डेली की रूटीन नहीं है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन हम यहाँ आ ही जाते हैं। अच्छा, तो ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ही सब कुछ आपको मिलता है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हर किसी को हासिल करनी चाहिए।
तो आप बच्चे तो यहाँ पर मेरा ख्याल है झूले लेते होंगे ऐसे ही? जी कितने झूले हैं यहाँ पर? बहुत सारे हैं। अरे आप कौन सा लेती हैं? सब। सब लेती हैं। तो आप मुझे कोई पोइम सुना दें। आप सुना दो। दोनों मिलके सुना देंगे? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder, twinkle star. Up above the wonder, why so high, Mike and I am. इसको आती है। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, एक और प्यारी सी ख़वातीन है यहाँ पर जो कि वॉक कर रही थी, तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नैना। नैना जी। तो बड़ा आपने चुन के नाम रखा है। मम्मा पापा ने रखा है। आपका असली नाम है या निक नेम है? नहीं, मेरा असली नाम है नैना। दूसरा नाम? नैना कमल। इसका मतलब? खूबसूरत आँखें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? रुखसाना। रुखसाना। तो आप इनकी अम्मी हैं? अम्मी हैं जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम भावलपुर बहावलपुर से है। बहावलपुर हम ऐतिया से हैं हम। ठीक है। तो DHA बहावलपुर कैसे आना हुआ? घूमने आए थे। इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे। इंसान जैसे इंटर होता है कि इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, फैमिली सेंट्रल पार्क है ये और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। यहाँ के ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है और बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह बनी हुई हैं। तो आपको इस पार्क में क्या अच्छा लगता है और आप कब से आ रही हैं? ज़रा मुझे तफसील से बताएं। जब से ये बना है तकरीबन 3-4 बार मैं आ चुकी हूँ। इंसान आता है, अच्छा लगता है, फ्रेश हो जाता है इतनी ग्रीनरी देख के, और माहौल चेंज है। और दूसरा यहाँ पे ये लाइटिंग करते हैं संडे वाले दिन रात को, इसलिए लोग ज़्यादा मुतवज्जो हैं इस तरफ। जी। वीकेंड्स वगैरह पे ज़्यादा? जी, वीकेंड संडे पे शायद ज़्यादा आते हैं। इसके साथ आना पसंद करती हैं? पूरी फैमिली आई हुई है। कौन कौन? अम्मी, सिस्टर, फुप्पो, कज़न वगैरह, नानी अम्मी वगैरह सब मिल के आते हैं? जी, मिल के आते हैं। तफरी करना, पार्क्स में आना, कहते हैं पार्क में जब इंसान आता है तो उसका मूड अच्छा हो जाता है, ये बात सच है? बिल्कुल सच है, ऐसे ही होता है, इंसान फ्रेश हो जाता है बिल्कुल आके पार्क में। आपको कैसा लगा है यहाँ? अच्छा लगा है। अच्छा लगा है। जी। क्या चीज़ अच्छी लगी है जो आप दूसरों को भी बताएं, जो यहाँ सोच रहे हैं कि हम आए ना आए, तो क्या अच्छी चीज़ें हैं? आए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हाँ, प्यार है बहुत। इसका पार्क का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। एक तो जैसे इंटर होते हैं कि जैसे बंदा पाकिस्तान में नहीं कहीं और आ चुका है, किसी और पार्क में आ चुका है, क्योंकि बहावलपुर में पहली बार बना है ऐसा पार्क, तो इसलिए लोग ज़्यादा मुतवज्जो हैं DHA के पार्क की तरफ। अच्छा, बहावलपुर के हवाले से और बताएं कि आप शुरू से बहावलपुर? जी, शुरू से बहावलपुर के हैं। कि कुछ चीज़ें बड़ी मशहूर हैं पूरी दुनिया में, तो वो क्या हैं? यहाँ की जैसे हाथ कढ़ाई का काम है, यहाँ पे ड्रेसेस बनाए जाते हैं, कनारी का काम है यहाँ पे, और इसके अलावा क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा, यानी कि मेडिकल फील्ड? जी। तो कोई बहावलपुर से जो बाहर से लोग आए हैं उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी, ख़ासकर DHA बहावलपुर या इस पार्क से हवाले से, या पूरे बहावलपुर के? पूरे बहावलपुर के हवाले से यही कहूँगी कि DHA आएँ आप, न्यू जगह है, एक इन्वायरमेंट भी बंदा चेंज होता है, फैमिली लेकर आएँ, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो बंदा भी, इंसान भी एंजॉय करता है, तो अच्छा हो जाता है। एक सवाल कर लें, एक पहेली पूछ लें आप दोनों से ही। आंटी कह रही हैं नहीं, ठीक है पूछते हैं। आपने ये बताना है कि वो क्या चीज़ है जिसके पास सुइयाँ होती हैं मगर वो सिलाई नहीं कर सकती? सुइयाँ होती हैं और वो सिलाई नहीं कर सकती? सुई ना तो सिलाई थी है ना। सुइयाँ आंटी कह रही हैं सुई से सिलाई होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके पास सुइयाँ होती हैं पर वो सिलाई करती नहीं है। मशीन ख़राब होगी कुछ इस तरह से? खराब हो सी। जी हाँ, जी हाँ। ख़राब मशीन सिलाई नहीं करेगी, ऐसा ना करे। बाड़वे से तो वाल सिलाई थी सी। बट से तो वाल सिलाई थी सी। मशीन के अलावा एक और चीज़ यहाँ हम में से किसी यहाँ आसपास है? यहीं आसपास है ये किसी मच्छर भी तो काटते ही हैं, सुइयों जैसा काम करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ है एक फैमिली जो कि इस पार्क में यकीनन एंजॉय करने आए हैं, कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए आए हैं क्योंकि शाम का टाइम हो और फैमिली साथ हो और एक खूबसूरत सा पार्क हो, खूबसूरत सा इन्वायरमेंट हो तो फिर आपका मूड अच्छा हो जाता है। देखते हैं कि इन लोगों से हम क्या बात करेंगे और आपको भी सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा फातिमा। ज़ारा। और सर आपका नाम? डॉक्टर अकबर खान। डॉक्टर हैं आप? जी जी। किस चीज़ के डॉक्टर? मैं फिजिशियन हूँ, जनरल फिजिशियन? मौला हूँ। जनरल फिजिशियन, दिल भी, मैदा, जिगर, हर पुर्जा चेक कर लेता हूँ हमारे। ठीक है। और आपका नाम? मोहित अकबर। तो आप तीनों का क्या आपस में रिश्ता है? ये मेरे फादर हैं, ये मेरे भाई हैं। ठीक है। तो सर कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे टोटल हैं, इतना मुश्किल है गिनना पड़ रहा है। हाँ गिनना पड़ रहा है ना, 8 बच्चे हैं। बच्चे तो फिंगर टिप्स पे याद होता है कितने हैं। नहीं वो 2 घरों से है ना, इसलिए मैंने कहा उस घर से कि 6 एक घर से है, 2 दूसरे घर से हैं, 8 हो गए। तो ये पहला घर है या दूसरा घर? ये पहला घर है, ये दूसरा घर है। दोनों घरों को मैनेज कर लेते हैं? अच्छा। नहीं वो पहली मिसेस की डेथ हो गई ना, तो उससे 3 बेटे 3 बेटियाँ हैं, वो उनकी 6 की शादी कर दी। अब दूसरे जिम्मेदारियाँ उतार ली। हाँ बिल्कुल। ये बेटी अब फाइनल ईयर में है, BMDC में, बेटा लम्स में पढ़ रहा है, जो छोटे घर से हैं ये पढ़ रहे हैं अभी। तो आप बताएं आप कहाँ से हैं वैसे? मैं बहावलपुर से ही, DHA से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज इस वक्त पार्क में क्या कर रही हैं और इस पार्क के हवाले से बताएं। इस पार्क के अंदर रात के टाइम हम लोग वॉक करने आए हैं, यहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है। तो क्या इन्वायरमेंट में क्या चीज़ पसंद है आपको इस पार्क की? क्या ऐसी एक चीज़ है जो बाकी पार्क्स में आपको लगता है कि नहीं है? इस पार्क के ट्रैक्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, वॉक करने के लिए अच्छे हैं, इन्वायरमेंट भी ओवरऑल अच्छी है। ठीक है। तो आप क्या करती हैं? मैं DPT की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सही हो गया। तो DHA लाइफ अगर मैं आपसे पूछूं कैसी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? DHA की लाइफ काफ़ी अच्छी है, पुरसकून है। सर आप बताएं कि आप रेगुलर वॉक या यहाँ पर आते हैं पार्क में या कभी कभी? मैंने यहाँ जिम ज्वाइन किया हुआ है एंड आई एम 75 नाउ। नहीं और मैं लग नहीं रहा। हाँ यही चक्कर देता हूँ मैं। और वॉक नहीं, मैं जिम रेगुलर करता हूँ। वॉक तो मेरे घर में ही जो है ना, वो घर के सामने ही वो जगह काफ़ी सारी, वहाँ पे कर लेता हूँ। जिम रेगुलरली करते हैं आप? क्या बात है, इसीलिए आपके चेहरे पे इतना ग्लो है ना? हाँ थैंक यू वेरी मच। तो पार्क में कभी कभी आते हैं? पार्क में अक्सर आना रहता है हमारा। तो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी है, ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पे फाउंटेन्स हैं। दूसरा हमारे गेस्ट्स आ जाएँ तो उनको भी बुला लेते हैं हम घुमाने के लिए, बच्चों के लिए भी एंटरटेनमेंट है, झूले वगैरह हैं बहुत सारे, खाने पीने की भी चीज़ें मिल जाती हैं हल्की फुल्की। तो आप क्या करते हैं? मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। मल्टीपल कितने? 3 के करीब तकरीबन समझ लेंगे। सब आप खुद देखते हैं? मैं ही वो करता हूँ। थोड़ा सा बताएंगे क्या? एक ड्राई क्लीनिंग है, ज़मीनें हैं इधर खैरपुर, और फार्मेसी वो लोग आफ्टर करते हैं। इधर ही DHA में ही आपका बिजनेस है? ये इधर शहर में ही है वैसे ये बताएं कि पार्क आना, तफरी करना, ज़ाहिर है आप इतना सारा काम करते हैं तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्यों ज़रूरी है? और आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में आपको इतना अच्छा पार्क मिल जाए तो मेरे ख्याल है किसी नेमत से कम नहीं है। ये एक तो ये है कि बंदा सारा दिन जैसे काम करता है तो थोड़ा स्ट्रेस वगैरह होता है, तो यहाँ वो हो जाता है, स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, कुछ इसमें कुछ वॉक वगैरह हो जाती है और लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है। बाकी देख लेते हैं बीमारियां हैं जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ना, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं तो वो वॉक करने से दूर होती हैं। अच्छा, और ख़वातीन कहती हैं हमने घर में इतना काम कर लिया है, हमने इतना चल फिर लिया है कि अब हमें वॉक की शायद ज़रूरत नहीं है, ये सही है या गलत है? कौन सा? नहीं, वो जो घर में काम शाम कर रही हैं ना, वो तकरीबन अगर बहुत बिजी भी रहती हैं ना तो तकरीबन आधी रोटी वो कंज्यूम करती हैं, और आपको पता है खाने की तो शौकीन है, तो इसलिए वो बल्कि हो जाती हैं। तो उनके लिए मस्ट है कि वो वॉक करें एंड दे शुड कीप एक्चुअली कंट्रोल देयर वेट, और वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर ये फालेज और दिल की बीमारियां जो हैं ये ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा मोटी हो जाएंगी तो गोडे गिट्टे रह जाएंगे। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वेट के साथ। तो DHA को चूज़ करना और फैमिली को यहाँ पर ज़ाहिर शिफ्ट करना, इंसान चाहता है कि किसी पुरसकून जगह पर रहे, तो आप यहाँ पर किस तरह से शिफ्ट हुए या क्या सोच थी कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए? हमें असल में लगता है कि दुबई है एन बहावलपुर। यहाँ की रोड वगैरह देख के, डेवलपमेंट देख के और एनवायरनमेंट देख के, ग्रीनरी, बड़ा खुला डुला माहौल है। अभी तो खुला डुला है, आइंदा का कुछ नहीं कह सकते,
तो भी एंजॉय, अब तो कहते हैं हम दुबई जा रहे हैं घर दुबई में रह रहे हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरसलान बशीर। सलाम बशीर। तो आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ लाहौर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो लाहौर में जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आप DHA हैं बहावलपुर और पार्क में हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ऐसे है कि जॉब तो मेरी लाहौर है, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो यहीं DHA में रहते हैं, तो वीकेंड पे फिर मैं घर वापस आता हूँ। तो आप लाहौर जाते हैं क्योंकि लाहौर की अपनी एक लाइफ है, वहाँ एक ऐसी रौनक है जो शायद कहीं नहीं है पाकिस्तान में, तो वहाँ जाके भी क्या आप DHA बहावलपुर को मिस करते हैं? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मेरी फैमिली इधर है और वैसे भी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ की हर सोसाइटी से मैच करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे मैं मतलब बहरिया टाउन में हम रहते हैं, तो लेकिन यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस फील नहीं होता, यानी उसी तरह का स्टैंडर्ड। यस, इसलिए फैमिली को मैंने यहीं रखा हुआ है। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मदर हैं, सिस्टर हैं और बच्चे हैं 3, वाइफ है। ठीक है। तो DHA में ओवरऑल DHA बहावलपुर की अगर हम बात करें तो कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है? और जाहिर है सेक्टर्स तो बहुत सारे आबाद भी हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा मार्केट्स का बताएं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ बताएं और हेल्थ के हवाले से जिम या फिर कोई क्लब्स वगैरह उस हवाले से बताएं। एक्चुअली बेसिकली हम पहले शहर में रहते थे, फिर हम यहाँ मूव हुए, तो हमने ये सारा जो DHA डेवलप होता हुआ अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, इसलिए हम यहाँ मूव हुए हैं। यहाँ पे पार्क्स हैं, बहुत खुले रोड हैं। ठीक है, तो जिस तरह मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, तो हम ये समझते हैं कि जो असल में आपकी जो असल मेडिसिन है वो यही है, नेचर। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो माइंड का पीस मिलता है, ठीक है, और आप हैप्पी फील करते हैं। खुले रोड हैं, खुले पार्क है। जिस तरह यहाँ पे मैं वीकेंड पे आता हूँ तो ये इसका जो ट्रैक है काफ़ी लेंथी है, और रोड्स में भी आप जाएँ, ठीक है, यहाँ पे आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बच्चे हमारे हैं, यहीं अंदर ही स्कूल है, वहीं जाते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी का हमें मसला नहीं है, मतलब अगर मैं पीछे हूँ, लाहौर में हूँ, तो यहाँ मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है मेरी फैमिली सेफ जगह पे है, सेफ है बिल्कुल, मुझे कोई टेंशन। आपको डोर स्टेप पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं? आपको मार्केट्स या शहर के अंदर जाना पड़ता है किसी काम के लिए? नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे हर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ग्रॉसरी, ईच एंड एवरीथिंग। बाकी फ़न एक्टिविटीज़ भी हैं सारी। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी इनका है, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह आप ले सकते हैं। और बाकी मॉल्स वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे सिनेमा घर वगैरह भी, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मतलब ओवरऑल हम समझते हैं कि फ्यूचर में बहुत आगे जाएगा ये। अच्छा, ये बताएं कि आपकी क्या हॉबीज़ हैं वैसे? जब आपको टाइम फ्री मिलता है तो आप क्या करते हैं? मोस्टली मैं तो यही है मेरी कोशिश कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रा की जाए या बच्चों के साथ कहीं घूम फिर लिया जाए। तो जिस तरह अभी बच्चों के साथ आए हुए हैं यहाँ पे घूमने फिरने के लिए। अभी यहाँ पे ये एक शो होगा, वो देखने आए हुए हैं। किस तरह का शो होगा ताकि लोगों को भी थोड़ा सा? ये यहाँ पे ये वाटर का जो होता है ना, डांसिंग वाटर का, डांसिंग फाउंटेन है। यस, जिस तरह पूरे बहावलपुर में कहीं नहीं, कहीं नहीं। मैंने लास्ट टाइम दुबई में देखा था, लेकिन अब मुझे पता लगा यहाँ भी होता है, तो फिर हम यहाँ देखने आए। देखिए ना, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ मेरा ख्याल है यहाँ रहने वालों के लिए, बल्कि ये जो पार्क है इट्स ओपन फॉर एवरीबडी। हाँ, मतलब बाहर से भी लोग आए हुए हैं और यहाँ के लोग तो डेफिनेटली है ही हैं। तो ये पार्क ओपन है मेजॉरिटी आवर्स में, तो ये और हर सेक्टर में है पार्क। ये मेन पार्क है, लेकिन हर सेक्टर में पार्क्स हैं। मतलब एक आपको लिविंग, एक फ्रेश एयर, आप जैसे ही शहर से यहाँ दाखिल होते हैं तो आपको एक टेम्परेचर में चेंज फील होता है कि आपको एक हल्की हल्की ठंडी हवा आनी शुरू हो जाती है, तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है, उसी से आपका मूड फ्रेश हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? आसिफ जतोई मेरा नाम है। मैं एक्चुअली बहावलपुर से ही बिलोंग करता हूँ और एक ब्रांड एरिया मैनेजर हूँ मैं, और मोस्टली आउट सिटी भी विज़िट चलता रहता है, मुल्तान भी इसी तरीके से, साहिवाल सराउंडिंग में। तो वीकेंड में हम नॉर्मली यहाँ पे DHA में आते हैं विद फैमिली, क्योंकि बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पीसफुल इन्वायरमेंट है। और ये देख रहे हैं आप जैसे वाटर डांस, ये बेबी हमारी बहुत अट्रैक्ट है इससे, तो वीकली बेसिस पे हम यहाँ आते हैं वाटर डांस देखते हैं। ऐसे ना। आपका नाम? मिन्हा। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितनी ठीक? बहुत सारी।
बहुत सारी ठीक हो। तो ये पीछे क्या नज़र आ रहा है? पानी। वाटर डांस। वाटर डांस। वाटर डांस। तो आपको कैसा लग रहा है ये देख? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी आप इसके साथ साथ डांस करेंगी? मीना भी डांस करती है वाटर डांस के साथ, हमारी बेबी। और ये नॉर्मली हमें ये वाटर डांस देखने के लिए एवरी वीकेंड जो है ना अभी यहाँ लाती है। ये कितनी देर के लिए मतलब ऑन होता है? नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स का इवेंट होता है ये। और यानी बहुत अच्छी एक तफरीह है बच्चों के लिए। एक बहुत अच्छा यानी इन्वायरमेंट यहाँ पार्क का है। तो मैं तो यही अदर कम्युनिटी को भी, सिटीजन्स को भी यही कहूँगा कि एवरी वीकेंड यहाँ आएँ और बच्चों को लाएँ। और एज़ वेल एज़ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अपने आप को माइग्रेट करने की कोशिश करें। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो आपकी रिहाइश कहाँ? मेरी भावलपुर में आदिल टाउन में है, दुबई पैलेस के साथ। तो ये मेरा ख्याल है जो जैसे स्पेशली डांसिंग फाउंटेन है या और जैसा यहाँ का एनवायरनमेंट है और नहीं है कहीं? यहाँ भावलपुर में और कोई नहीं है। प्लेलैंड टाइप जो है ना कोई किसी और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेबी के लिए हमने जब वो वीकेंड पे जाना होता है तो मोस्टली ये जो इन्वायरमेंट है ना इस किस्म का भावलपुर में कोई नहीं है। ये आपके बेटे? ये मेरा बेटा है अयान। तो आप चुप हैं। आपका नाम क्या है? अयान नाम है मेरा, अयान खान। क्या करते हैं? मैं पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। कौन सा सब्जेक्ट? मैं मेडिकल कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह जी। पढ़ाई के साथ साथ इंजॉयमेंट लाइफ में कितनी ज़रूरी है? क्योंकि तफरीह करने से फिर हमारा जहन थोड़ा खुलता है। अगर हम इन्वायरमेंट के साथ साथ रहते हैं, अटैच रहते हैं। यहाँ आके कैसा लग रहा है? क्या चीज़ अच्छी लग रही है? बस यहाँ पे आते हैं इसकी वजह से, मीनू की वजह से, मीना की वजह से आते हैं। फिर ये वाटर डांस देखने आते हैं, फिर हम लोग भी इंजॉय करते हैं, भी इंजॉय करती है। और वो फर्स्ट टाइम ही आप लोगों की प्रेजेंस देखी है यहाँ पे। तो आप लोगों की ये एफर्ट होगी तो लोगों तक पहुँचेगी तो लोग यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूव करेंगे। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने हमारे साथ साथ इस पार्क की सैर भी की होगी, DHA भावलपुर की भी सैर की होगी। यहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में जाना, यहाँ के लोगों के बारे में जाना, यहाँ पर एंटरटेनमेंट, उसके साथ साथ फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ की वाइब, एक एक चीज़ देखने वाली है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं है जो नहीं देखी, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की, तो इस जगह को लाजमी एक्सप्लोर करें, आप लोगों को मज़ा आएगा। आज हमने एक सवाल किया था लोगों से कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी सुइयाँ होती हैं मगर वो फिर भी सिलाई नहीं करती, तो वो है घड़ी, वॉच। इसकी सुइयाँ होती हैं लेकिन ये चलती हैं, वक्त को आगे चलाती हैं और वक्त जो है वो तेज़ी से आगे जा रहा है। इसलिए अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें और अपने से जुड़े हुए रिश्तों का भी साथ ख्याल रखें। इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।